जो हमने अभी तक डिस्कस किया, is it clear, like what we have discussed so far? Is it clear? Yes or no? Just mention in chat box yes or no. हमने अभी जो समझा है origin of language, is it clear? Yes or no in the chat box. Just type yes or no in the chat box. Okay. Okay, ji. So now we are going to understand this very amusing history. You know, I have used this very word amusing. So Anglo-Saxon. In short, from 450s onward, we are going to understand the history of English literature. I need your attention for some time, obviously. So Germanic tribes, I was mentioning Germanics settled there. So what I was mentioning, when Germanic tribes settled there in England, they adopted their language too. So whenever you're living somewhere, it's not possible for you to stop this cross culture. You have seen many, Pakhtun people who are living in Lahore and in other cities of Punjab, and their Urdu and their, speaking part, they are better as compared to those who are not living here. Okay, so Germanic settled here. Similarly, Germanic gave their own culture. Germanic gave their own language. I have mentioned, and I will mention again, at that time, Ireland, Scotland, Wales, and England, these four, they were together. They were not the separate entities. They were not the separate countries. So when Germanic tribes were settled there, they were leaving their impact on people too. Once again, I would like to quote the very words of Michael Foucault. And what are those words? Michael Foucault. He mentioned power and language, they are directly proportion. So what is meant by this? Anglo-Saxons, we are going to understand this era from 450 till 1066, and this tenure is known as Old English. And from 1066 till 1400, this tenure is known as Middle English, MIDDLE, obviously. And then from 1400s onwards till now, we have Modern English. So the things are clear. In this way, English proceeded further. I was mentioning a name, and the name is not difficult. Having just four words in it. It's Bede. Bede. What Bede was doing? He was using Latin language. And what was the century when Bede was writing? It was 8th century. So Bede was contributing something in Latin in 8th century. Okay. So in 731, he produced a book. The name of the very book that he produced was History of English Church and People. The name is History of English Church and People. And once again, that is sarcastic to mention, like the language of this very book was Latin. So Bede, whatever he was contributing, although he was a very great writer, Bede was the first writer who was writing in that century, but he was using which language? He was using the Latin language. Why Latin language? Latin language was considered the prestigious language. But there was another person who was contemporary of this very person, Bede, and his name was Caedmon. So Caedmon was the contemporary of Bede. एक ऐसा पर्सन था जिसने ओल्ड इंग्लिश में लिखा, और कैडमन जो है ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा था? He was using the English language.
So we may say कि हमारे पास आखिरकार एक नाम आ गया जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू कर दिया, and his name was कैडमन। अब कैडमन जो है जब बातें कर रहा हो, जब कोई बंदा उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हो, तो लोग जो हैं वो एक्साइटेड तो होते हैं। रिमेंबर ये क्यों वजह थी कि 1967 के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। हिंदुओं को हमारी उर्दू से क्या कंसर्न था, उनको हमारी इंग्लिश से क्या कंसर्न था। रिपीट फ्रॉम बीट। ओके, so Bede was a writer who was writing in Latin, and he was from 8th century. In 731 he produced a book that was a history of English churches and people, English church and people, जो कि लैटिन में लिखी गई थी। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं कैडमन। कैडमन जो है वो इंग्लिश में लिखते थे। ओके, सॉरी 1867। एहसान, थैंक्स टू यू। यस, 1867 वी हैव उर्दू हिंदी तनाज़ा। लैंग्वेज के अंदर कुछ तो होता है। तो जब कैडमन जो है वो लिख रहा था, कैडमन लिख रहा था, सो इट मींस हिज फॉलोअर्स भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसको फॉलो कर रहे थे। तो हमारे पास जो लोग कैडमन को फॉलो कर रहे थे, दे आर नोन एज द फॉलोअर ऑफ कैडमन। वो जिस हवाओं में फॉलो नहीं कर रहे थे, इवन दे प्रोड्यूस ए क्लेमिनेशन। द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ देयर पोएम्स जो इन्होंने लिखी उसका नाम चार्म्स था। सो हमारे पास इंग्लिश में एक काम भी आ गया। एक ऐसे लोग जो कैडमन को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने एक अपनी कलेक्शन दी पोएट्री की, और वो थी हमारे पास चार्म्स के अंदर जो है। सो द पीपल दे वर वेरी एक्साइटेड दैट एट लास्ट they got a chance to read their own language. They were sick of this very Latin language. अब हमारे पास जो है कहानी आगे बढ़ती है। अब लोग जो हैं, जब हमारे पास हम ये समझते हैं, हमारे पास जो है, यस नसीम खां, क्योंकि इससे पहले अगर आप बात करें तो हमें बीवुल्फ का राइटर नहीं पता है। बीवुल्फ राइटर इज एनोनिमस। ओके, सो अब हमारे पास जो है, हमने ये देखा, हमने वी वर डिस्कसिंग अबाउट एपिक। एपिक क्या होती है? एपिक हमारे पास एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर एडवेंचर्स जो हैं वो होते हैं। अब हमें ये एपिक को समझना जरूरी है। पहले हमने एपिक को सिर्फ देखा था। एक ऐसी पोएम जिसके अंदर एडवेंचर्स होते हैं। अच्छा, किस किस्म के एडवेंचर्स होते हैं? जिनको पढ़ा जाए, दोबारा पढ़ा जाए, और उनको आगे आने वाली जनरेशंस भी पढ़ें। ठीक है, जैसे हमने ये देखा कि इंग्लिश के अंदर बीवुल्फ थी, उसको ये एपिक कहते हैं। एक लंबी नज्म है, एक रज़्मिया नज्म है जिसमें एडवेंचर्स होते हैं, जिसमें हीरोज होते हैं, जो कि इन लोगों के लिए अभी काम कर रहा था एक सैंपल के तौर पे, जो इन लोगों को ये बता रहा था कि बाद में आने वाले जो राइटर्स हैं वो किस तरह से लिखेंगे, वो किस तरह से जो है वो करेंगे। नो, इट इज नॉट साइन वुल्फ, इट्स नॉट। साइन वुल्फ विल come, that is a part of our today's session, Zainab, but it's not San Wolf. ओके जी, सो हमारे पास जो है, हम इससे जो है वो आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है वो देखते हैं। एपिक पोएम को हमने डिस्कस किया, लेकिन यही एपिक जो है, जब सारी की सारी मशीनरी इसके अंदर वही रहे, लेकिन जब इसका अनुमान जो है वो इस तरह से हो जाए कि ये इसका जो टाइटल है वो बड़ा ट्रिवियल हो, तो ये मोक एपिक बन जाती है। मिसाल के तौर पर द रेप ऑफ द लॉक की हम बात करेंगे। यहाँ पे एपिक को समझ रहे हैं तो मोक एपिक को भी समझ लेते हैं। जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं, 5 कैंटोस पर मुश्तमिल जो है, अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई, हमें ये लगता है गॉड फॉरबिडन, पता नहीं क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वेरी पोएम, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस बुक। बट आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि टाइटल तो बड़ा जबरदस्त है, बट एवरीथिंग इन द पोएम, दैट इज नथिंग। द टाइटल, द सब्जेक्ट इज वेरी ट्रिवियल। तो वो हमारे पास मोक एपिक है। एक एपिक एक दास्तान है जिसके अंदर जो है वो हीरोज होते हैं, जिसके अंदर जो है वो अपने कल्चर को, अजमत अजीम लोगों की दास्तानें हैं। सो हमारे पास जो है वो अभी एपिक जो है वो इनके लिए एक सिंबल थी, और वो हमारे पास हमने देखा था कि बीवुल्फ से ऑनवर्ड्स ये कहानी चलती थी। सो यहाँ से लैंग्वेज परवान चढ़ना शुरू हुई, और जो मॉडर्न इंग्लिश हम आज फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश, इसके अंदर 40,000 से प्लस वर्ड हैं वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने दिए हैं, और एंड दैट पर्सन इज विलियम शेक्सपियर, जिसका वर्क तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर लिया गया है। सो
द कैडमन वॉज द फर्स्ट पर्सन, कैडमन वॉज द फर्स्ट पर्सन जो क्या कर रहा था, फर्स्ट यूजर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये कौन सी इंग्लिश को यूज कर रहा था, ही वॉज यूजिंग द he was using the old English. ओके इंग्लिश। अब हमें यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास कैडमन के बाद एक और नाम आता है जो वुल्फ से मिलता जुलता है। कैडमन के बाद हमारे पास नेम आता है साइनेवुल्फ का। ओके, सो साइनेवुल्फ इज देयर। साइनेवुल्फ जो है हमारे पास, ये भी ओल्ड इंग्लिश का पोएट था। सो हमारे पास साइनेवुल्फ भी ओल्ड इंग्लिश का पोएट है। हमने बीवुल्फ की समरी आज आपने पढ़नी है। ओके, बीवुल्फ जो है वो दैट इज योर असाइनमेंट कि आपने इसकी समरी को पढ़ेंगे भी, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है कल जो है इन टुमारो सेशंस ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव अ क्विज ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। जो हमने अभी तक कवर कर लिया इसके ऊपर आपका मैं क्विज भी लूंगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट जैसे हम ये आज का सेशन खत्म करेंगे आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट ऑफ 10 वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर योर जनरल इंग्लिश। सो साइनोवुल्फ हमारे पास इससे अगला जो है वो नाम आ जाता है। साइनोवुल्फ की कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाती है। इससे पहले कि हम साइनोवुल्फ को डिस्कस करें, हम बीवुल्फ से थोड़े से सिंबल्स जो हैं वो लेना चाहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। बीवुल्फ को आप देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि उसके अंदर हमारे पास एक हीरो होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास ग्रैंडल है, हमारे पास हम देखते हैं कि एक बैटल जो है वो होती है, और बाकी क्या क्या होता है ये स्टोरीज आप खुद देखिएगा। हमने एक चीज ये देखते हैं कि ये जो इसके अंदर हीरो है ग्रैंडल जो है, वो दो एलिमेंट्स को शिकस्त देता है। उसकी जो एक मॉन्स्टर होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो ड्रैगन होता है, ठीक है जी। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मॉन्स्टर और ड्रैगन, ये इंग्लिश पीपल जो हैं इनका शुरू से ही, ड्रैगन किस कंट्री का सिंबल है? व्हाट कम्स इन योर माइंड जब हम ड्रैगन को देखते हैं? कौन सी ऐसी कंट्री है कि जिसका सिंबल ड्रैगन है? यू मे मेंशन द नेम ऑफ दैट कंट्री इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड महागुड, इट्स चाइना। मुदस्सिर रजा, वेरी गुड, चाइना का सिंबल है। ओके, सो ड्रैगन, अब यहाँ पे चाइना की तरफ इनका इशारा नहीं है, इनका इशारा पूरे को पूरे एशिया की तरफ है। दे वर प्लानिंग टू कंक्र द होल एशिया, कि हमने पूरे के पूरे के करने। और मॉन्स्टर किसकी तरफ है? आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ा होगा जोसेफ कार्नेट का। सो मॉन्स्टर किसकी तरफ इशारा है? अफ्रीका की तरफ। वेरी गुड मुदस्सिर, इट इज पॉइंटिंग एंड रेफरिंग टुवर्ड्स अफ्रीका। सो इनके जहन में यही था, हमने पूरी दुनिया को कॉन्क्रेट करना है, और उन्होंने किया। यू नो 18th सेंचुरी से आप 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी उठा के देख लीजिएगा, दे कॉन्क्वर्ड एशिया, अमेरिका, कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज, अफ्रीका इवन। सो ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स हमारे पास आते हैं, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूस जो हैं, इन्होंने जो लैंग्वेज के ऊपर काम किया वो अभी तक सारे का सारा स्पोकन फॉर्म में था। वो सारे का सारा जो है वो किस फॉर्म में था? बी ब्लेस एहसान, बी ब्लेस बेटे, वो सारे का सारा स्पोकन फॉर्म के अंदर था। लेकिन अभी से ऑनवर्ड जो बातें चलेंगी वो होंगी रिटन फॉर्म में। अच्छा, जब हम स्पोकन फॉर्म की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि इवन द होली कुरान, you know all the books, हमारी जो, I'm a Muslim so I will quote the maximum reference from Islam। अगर आपका ताल्लुक किसी और रिलीजन से है तो आप अपने रिलीजन के मुतालिक भी जो है वो देख सकते हैं। सो इन इस्लाम हमारे पास जो हमारी होली बुक है, हम ये भी देखते हैं सबसे पहले जब सहाबा कराम इकट्ठे किए करते थे, सो दे वर यूजिंग द लीव्स, पत्तों के ऊपर जो है वो करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास पत्तों के ऊपर होती थी। अब यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसा था। याद रखिएगा, लैंग्वेज जो हम जुबान इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज इज नॉट द स्टोरी ऑफ ए सिंगल डे। मुझे नजर नहीं आ रहा ये इसके पीछे छुप गया है, जस्ट गिव मी अ सिंगल डे। सो इंग्लैंड के अंदर जो है लैंग्वेज का असल में वजूद हमारे पास आता है जब 1440 के अंदर जो है वो गुटेनबर्ग हमें देता है प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1476 में इंग्लैंड के अंदर आती है, जिसे विलियम कॉक्सन जो है वो लेके आता है। ओके जी, विलियम कॉक्सन जो है वो इसे लेके आता है। उससे ऑनवर्ड जो है वो लिटरेचर आगे बढ़ता है।
सो उससे ऑनवर्ड लिटरेचर आगे बढ़ता है। बीट ने लैटिन के अंदर लिखा, और इंग्लिश जो है वो उसमें हमने देखा कैडमैन ने लिखा। सो हमने इनके तो देख लिया। अब मुझे बताएंगे जरा चैट बॉक्स में, जब मैंने मेंशन किया था द वेरी नेम चार्म्स, तो चार्म्स किसकी कलेक्शन थी? चार्म्स किसकी कलेक्शन थी? कौन थे और किन के फॉलोअर्स ने मिलकर जो है वो चार्म्स दिया था? वेरी गुड, वेरी गुड। सो सिमिलरली हमारे पास जो है, जब हमने साइनवुल्फ की बात की है, so it is important and pertinent to mention something about Sainawolf too. Sainawolf and his followers gave us the book Exeter. इन्होंने जो हमें काम दिया वो हमारे पास है Exeter बुक के नाम से। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज जितनी भी बातें हुई हैं सारी की सारी आपके एमसीक्यूज के फॉर्मेट से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारी की सारी डेट्स जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो हमें जो है एग्जीटियर बुक जो है वो हमारे पास आती है। अभी एग्जीटियर बुक थी क्या, इसके अंदर था क्या जब हमने एग्जीटियर को मेंशन कर लिया? एग्जीटियर बुक वाज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम से, कैसी पोएम से? लाइक हाउ इट इज पॉसिबल कि उस टेन्योर में हमारे पास पोएम से? रिमेंबर, whenever we are talking about old English and whenever we are talking about the poetry of this age, the poetry was having no rhyme scheme, no rhyme scheme. अच्छा, what is meant by rhyme scheme? rhyme scheme होती क्या है? इसके अंदर जो हमारे पास पुरानी इंग्लिश होती थी उसमें सिर्फ एक ही चीज होती थी, और वो होती थी हमारे पास एलिट्रेशन। ALLITERATION, एलिट्रेशन वाज देयर। एलिट्रेशन क्या थी? आसान लफ्जों में बात कर लेते हैं। एलिट्रेशन से मुराद हमारे पास ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स। तो इंग्लैंड में इंग्लिश वालों ने जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज दी, एक ही चीज दी, दैट वाज एलिट्रेशन। एक ऐसा म्यूजिक दिया जिससे रिदम पैदा हो। यस शाजिब, हाँ ठीक है। नो राइम मींस ब्लैंक वर्स, ओके, दैट इज ब्लैंक वर्स ना। सो हमारे पास एलिट्रेशन वाज दी। जो एलिट्रेशन ये कैसे होती थी? आपको लगता है कि ये कोई बड़ा मुश्किल सा फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ था? नो, इट वाज नॉट द केस। इंग्लैंड के अंदर तो उन्होंने अपनी ब्रीथिंग के साथ कुछ किया हुआ था कि हमने जब ब्रीथ करते हैं, तो हमने जब सांस लेती है तो इसमें म्यूजिक थोड़ा सा पैदा हो, ठीक है। सो इसके अंदर जो है जब इसका फ्लो हो जाएगा तो वो हमारे पास जो है वो एलिट्रेशन हो जाएगी। इंग्लिश को जितने, जब आपके पास कोई राइम स्कीम नहीं होगी तो आप उसे कहेंगे ब्लैंक वर्स, ठीक है सर, जिसके अंदर आपके पास कोई राइम स्कीम नहीं होती है। एंड राइम स्कीम से मुराद क्या होता है? जिसमें कोई मीटर नहीं होता है। हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, हमारा पूरा डेडिकेटेड सेशन है इसके ऊपर आने वाले सेशन में। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा, दे वर यूजिंग द ब्लैंक वर्स। सो ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश के अंदर जितनी भी सारी की सारी पोइट्री थी वो सारी की सारी क्या थी? वो सारी की सारी अनराइम्ड थी। यहाँ तक हम सब जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है सर। अच्छा, इसके ऊपर एमओसीसी का एक पूरा सेशन मौजूद है मिस सीमा शेर साहिबा, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टुडे सेशन। ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है, हमारे पास ये सारी की सारी वर्सेस पे वी हैव सेशन 3। आज हमारा सेशन 1 है, सेशन 3 में हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टुडे सेशन। सो अब हमने जो है वो अनराइम्ड समझ लिया कि ओल्ड इंग्लिश में हमारे पास जो है वो क्या है, अनराइम्ड जो है वो चीजें सारी की सारी आती हैं। सो अब हमें ये समझ में आना शुरू हुआ कि इस एज के अंदर था क्या, इस एज के अंदर पोइट्री कैसी होती थी, इस एज के अंदर चीजें मूव क्या करती थी। और इन लोगों को जिसने आके प्रोज को इंट्रोड्यूस करवाया था, जब प्रोज फॉर्म जो है वो हमारे पास आई थी, प्रोज फॉर्म के अंदर जो रोल था वो था किंग एल्फ्रेड का। सिर्फ अभी आपने यही याद रखना है कि प्रोज इंग्लैंड के अंदर लाने वाले थे किंग एल्फ्रेड, और उन्होंने ये किया था 9th सेंचुरी एडी के अंदर। ओके जी, सो क्लियर। अभी जब प्रोज फॉर्म हमारे पास 9th सेंचुरी एडी में आती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है इससे पहले ट्रांसलेशंस किसी किस्म की अलो नहीं थी। सो बाइबल को ट्रांसलेट नहीं किया जाता था, जो लोग ट्रांसलेट करते थे उन्हें हैंग कर दिया जाता था। सो ये हमारे पास ओल्ड इंग्लिश की ये स्टोरी कंटिन्यू रहती है टिल 1066 तक। और जब हमारे पास हम फिर ये देखते हैं कि अगला अटैक हमारे पास होता है, और अगला जो टेन्योर आता है वो हमारे पास एंग्लो नॉर्मन्स का आ जाता है।
एंग्लो नॉर्मन जो है कि वो किस तरह से आते हैं और वो क्या चेंजेस करते हैं, कहानी किस तरह से बदलती है और इससे आगे कैसे चलते हैं, दैट इज ऑब्वियसली a part of our tomorrow sessions. So that's it about today's session. हमारा 1 घंटे का lecture था. Now the house is open for your questions. If you have any question, you may write your question there in the chat box, and I will try to answer your questions. So the house is open for the question. If you have a question, you may raise your hand. That's I have a question, and I will unmute your mic, and you can go with your question. So हमारे पास जो हैं, yes, it was जुनैद खान. You are right, बेटे. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही था. So हमारे पास इस तरह से हमारे जो हैं वो इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो चलते हैं. लिटरेचर इज लाइफ लुबला इन वेरी सिंपल वर्ड्स. एक इंटरव्यू में जब हम अपने इंटरव्यू के सेशंस की तैयारी करवा रहे थे, तो आई वुड ऑब्वियसली लाइक टू मेंशन मैडम सुरैया जो हैं वो, उनके नेम को मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे. शी आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमारे एक एस्पिरेंट जो हैं वो हॉल में इंट्रो हुए, तो उन्होंने उनसे यही बात पूछी कि उन्होंने कहा कि ओके जी जेंटलमैन, आई हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम यू टू आस्क. उन्होंने कहा जी यस प्लीज. पहला क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताएं आप जो हैं कि व्हाट इज लिटरेचर. So he tried to justify literature in multiple dimensions. Literature is this, literature is that, and at the end the Mr. Chairman responded with smiling face, literature is life, gentlemen. So literature is life. Okay, so ये हमारे पास जो है वो कुछ इसके आंसर्स जो होते हैं. सर आप प्रिसाइज में ना लिखें, आई गोट कंफ्यूज. ओके महा, अगर बेटे आप इस लेवल पे भी आगे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आई थिंक हमें पहले लैंग्वेज पे कुछ काम करना चाहिए. सर काइंडली शेयर द स्लाइड्स बिफोर द अटैक वाज मैनी ट्राइब्स आई वाज अनएबल टू connect. You will be given the recording of the first part, Sabah Shakil, as your concern is genuine. Last slide please. Okay, last slide जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं. आई थिंक दे आर देयर. एंड अच्छा मैं बात कर रहा था, so इसी तरह से जो आज के सेशन से रिलेटेड हमारे पास इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, हम वो भी मेंशन करेंगे और आपने कुछ वर्ड्स जो हैं वो नोट करने हैं, और वो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो भी आपकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैम जो बात कर रहे थे, हमारी जो सेशन के अंदर जो है वो कवर जो होगा, कुछ हमारे पास हमारे आज पिछले जो स्टूडेंट्स हैं बैचेस से वो भी हैं, एंड दे विल श्योरली एक्नॉलेज ऑल द थिंग्स. नसीम योर क्वेश्चन आई कुडंट सी इट. वो किसी के क्वेश्चंस मल्टीपल पूछने से ऊपर चला गया है. जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन अगेन. यस इट इज वुल्फ. अच्छा जी, पहले हमारे पास जो है इनका क्वेश्चन, मैं जुनैद खान साहब का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ. जुनैद, हमारे पास लिटरेचर चलेगा. लिटरेचर में हमारे पास इस तरह से है, इस सेशन में आपके पास जो है आपकी जनरल इंग्लिश भी साथ साथ होगी. अभी मैं आपको 10 वर्ड्स जो हैं वो वोकैबुलरी के मेंशन करने लगा हूँ, जनरल, जो कि हमने पिछले पेपर से और हमारा जो अपना डेटाबेस है उसमें से हमने जो है वो प्रिपेयर किए हैं. सो द लिटरेचर क्लासेस एंड द जनरल क्लासेस, दे विल बी इन पैरेलल सेशंस. In literature, we are going to cover the history of English literature. From 450 till post-colonialism. Okay. So हम इसको कवर करेंगे. इसके साथ साथ हमारे जो हैं वो जितनी इसके अंदर राइटिंग्स जो हैं वो होंगी, जो राइटिंग्स हैं. अच्छा, क्वेश्चंस को होल्ड कर लीजिए. अगर मैं क्वेश्चंस को देखता हूं तो मैं स्क्रीन पे नहीं लिख पाऊंगा. सो इसके साथ साथ आपकी हमारी 52 बुक्स हैं, जो कि इंशाल्लाह आपके फर्स्ट वीक को हर मंडे को जो है वो आपका KPPSC के फॉर्मेट के मुताबिक टेस्ट होता है. सो मंडे को आपको, उससे पहले जो है वो फ्राइडे को हम बता देंगे. जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बताएंगे भी कि हमारे टेस्ट सेशंस होते हैं, वो टाइमिंग उनकी कैसे होती है एंड हाउ वी प्रोसीड फर्दर. हमारे टेस्ट सेशंस का सिलेबस आपके साथ फ्राइडे को इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा, और या मैक्सिमम सैटरडे को, ताकि आप इनको जो है वो तैयार कर सकें. मंडे को आपका जो है वो टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा. आपके पास ये कोई PDF फॉर्म के अंदर पेपर नहीं आएगा, आपके पास इसका लिंक आएगा. ऑल द थिंग्स आर डिजिटल है इन MOCC.
सो आपके पास लिंक आएगा, उस पर आपने पेपर अपना जो है वो अटेम्प्ट करना है। आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। 60 मिनट्स के अंदर इस दफा हमने एमसीक्यूज को बढ़ा दिया है नए बैच के साथ जो है वो। पहले ये एमसीक्यूज होते थे 100, लेकिन आपकी दफा कम से कम जो है वो 120 एमसीक्यूज होंगे या 140 तक ये जा सकते हैं। टाइमिंग को आपको मैनेज करना है। यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स फॉर ईच सिंगल क्वेश्चन, फॉर एवरी क्वेश्चन। और इसके बाद जो हमारा है, इसके बाद हम चलेंगे, मूव करेंगे, वो विल मूव टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स। और लिंग्विस्टिक्स चूंकि आपके पेपर के अंदर उसकी वेटेज होती है मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स की, तो उसके ऊपर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारी जो क्लासेस हैं वो 10 से 14 क्लासेस के अंदर हम उनको कवर कर सकें। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर गोइंग टू हैव 30 टेस्ट सेशंस। हमारे जो 30 टेस्ट होंगे वो भी चलेंगे। वो एक डेडिकेटेड सेशन भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली के 30 टेस्ट जो हैं वो आपके जिनके एग्जाम जल्दी हैं वो उनके उसी तरह से ले जाएं। सो टुडे वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच। फरीदुल्लाह साहब, आज हमारे बैच की पहली क्लास थी। इससे पहले कि हम वोकैबुलरी की तरफ बढ़ें, अपने पोर्शन की तरफ, सो हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी जो हैं, हम एक हमारे फेसबुक पेज के ऊपर डेली बेसिस पे आपके लिए एक टेस्ट जो है वो हम करते हैं। उसका आंसर्स हम इसलिए नहीं देते हैं, मेक इट श्योर जी, वो एक जनरल टेस्ट होता है। आंसर्स जहां से हम क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, हमें आंसर्स देने में भी कोई इशू नहीं है। ये हमारे पेज का लिंक है, इसको रोजाना जो है वो देख लीजिएगा। इसके ऊपर डेली बेसिस पे आपके पास कम से कम जो है वो 15 के करीब जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास मौजूद होते हैं। आप इनको आंसर्स करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप इनको गूगल करके आंसर कीजिए। आप, हमें कोई इशू नहीं है जो आप इसमें मेंशन करने की। और अगर आपको कोई आंसर नहीं ना पता कि किसका है, उसका आसान सा जो है, जो करेक्ट आंसर होता है उसे हमने लाइक किया होता है। जिस किसी एस्पिरेंट ने करेक्ट आंसर जो है वो दिया होता है, हमने उसे लाइक कर देते हैं ताकि बाकियों को पता चल जाए कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी के लिए एक्टिविटी है, ये सभी के लिए चलता है। लेकिन जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस दफा जो है वो हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो मंडे को, एवरी मंडे वो उन्हीं की क्लास टाइमिंग के अंदर हम शेयर करते हैं। और वो टाइम बेस्ड पेपर होता है, और वो उसी तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि केपीपीएससी के फॉर्मेट के मुताबिक उनको जो है वो टफ टाइम देने की कोशिश करें। और हम टफ टाइम देते भी हैं, ऐसा हमने अपने प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री है उसमें देखा। सो ये हमारे टेस्ट हैं वो मिनिमम टेस्ट आपके पूरे सेशन में जो होते हैं 15 प्लस पे चले जाते हैं। बट इन दिस सेशन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जो है वो 25 प्लस टेस्ट पे जो है वो लेके जाएं आपको, ताकि हम इसमें बाकी चीजों को भी शामिल कर सकें। सो इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद एमओसीसी, the process is very simple. Just leave a message here on this number that is in front of you, and you will be there. आपको जो है वो the team will contact you or they will leave a message for you. ओके जी, सो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज द वोकैबुलरी ऑप्शन। अभी करना कुछ यूं है, आपके सामने सिर्फ मैं 10 वर्ड्स दे रहा हूं जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये एक्टिविटी है कि उन्होंने ये एक्टिविटी के आंसर्स जो हैं वो हमें इन वर्ड्स को, वोकैबुलरी के वर्ड्स को, दे विल मेक देयर ओन सेंटेंसेस एंड दे विल शेयर देयर सेंटेंसेस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, अपने ग्रुप के अंदर जो हैं। एंड इट इज अ मैंडेटरी एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली नॉन रजिस्टर्स को हम मॉनिटर नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए एक्टिविटी नहीं है। इस वर्ड को आपने न सिर्फ याद करना है, इनको इनकी अपनी अपनी लाइफ से आपने जो है वो जुमले बनाने हैं। सो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम योर वोकैबुलरी आर देयर। सो फर्स्ट पे हमारे पास है फियास्को, जिसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर होना किसी चीज का। बट ऑब्वियसली इसको आप ही देखेंगे, मैं अभी सिर्फ वर्ड्स लिख रहा हूँ, डिक्शनरीज आर देयर, आपको याद करवाना मकसद है। सो कुछ आसान भी होंगे आपके पास और कुछ मुश्किल भी होंगे। Indeterminate, and the sixth one is inquest. The seventh one is fishious, and the eighth one is spearhead. So you will make your own sentences and you will share it
एंड दिस इज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी। आप इसको जो है वो 10 PM तक, ये चूंकि सिर्फ 10 जो है वो वर्ड्स हैं आपके पास, सो 10 PM तक जो है वो आप इसको करेंगे। इस फियास्को, जेनेसिस, ग्रिसली, हेयरसे, इंडिटर्मिनेट, इंक्वेस्ट, ऑफिशियस, स्पीयरहेड। ओके, सो ये जो है वो आपने इनके सेंटेंसेस बना के शेयर करने हैं, और आप अगर इनके मीनिंग चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये हमारी जनरल इंग्लिश से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी है। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर कि आपको हमारी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की और दूसरे सेक्शन दोनों की समझ में आई होगी। इफ देयर इज एनीथिंग जो आपके जहन में है, जो क्वेश्चन है और आप उसे नहीं पूछ सके, यू मे रेज योर हैंड हियर, और आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप इस नंबर पे जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली द टीम इज गोइंग टू contact you. Okay जी, ओके जी। अच्छा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट नसीम साहब, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, बट आपने नहीं लिया, अभी ले लीजिए। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट ट्राई टू टेक द स्क्रीनशॉट। इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे पास अच्छा एक्टिविटीज जो है वो चलती रहेंगी, और इस एक्टिविटीज में इस दफा जो है वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप जो है मूव करें, और आप इस तरह से मूव करें कि आप सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ सकें। ठीक है जी। और अच्छे से समझने से मुराद ये नहीं है कि बस उन्हें कॉपी पेस्ट करें, इनको जो है वो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास जो है कि ये कहाँ से आए थे। अच्छा, एहसान की तरफ से। एहसान, रिमेंबर Gaelic language and their culture, somewhere it originated in Ireland, but at that time Ireland was not a country. Okay, हमारे पास जब हम इनको देखते हैं कि ये लोग जो हैं एंटिक्विटी में, पुराने दौर में गेल्स और जो कैल्टिक्स थे, ये असल में रेड किया करते थे, ट्रेड किया करते थे दूसरी कंट्रीज के साथ। सो इफ यू आर गोइंग टू पिन पॉइंट देयर रीजन, इट इज नॉट पॉसिबल, बट हम ये कह सकते हैं कि दे आर एसोसिएटेड विद दीज ट्राइब्स। ये कैल्टिक जो हैं और जो गैलिक हैं, ये समवेयर स्कॉटिश ही थे। स्कॉटिश के साथ से मुराद ये है कि ये उन एरिया से थे जहां से ये लोग जो हैं वो हमारे पास लेटर ऑन स्कॉटलैंड बना था। ठीक है, बट हम अगर इन्हें ये कहें कि ये कुछ ऐसे ग्रुप थे जो ओरिजिनली यहीं पे आए, क्योंकि ये डिफरेंट ऐसे ट्राइब्स से जहां पे हमारे पास हिस्टोरियंस के मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश कहीं से आए थे, या कहीं आयरलैंड के जो है वो ओरिजिन से आए थे। ओके, Okay, Ji, thank you so much for all of you. It was a wonderful session. I think that we have learned a lot many things from you. And see you guys tomorrow. जो हमारे students हैं उनके से सुबह मुलाकात होती है। बाकी students जो हैं they may take your time and we are wishing you good luck. अगर आप किसी भी academy का part नहीं हैं तो आप अपने तौर पर भी follow करना चाहें, English literature को follow कीजिए, English language को follow कीजिए, और इन तमाम चीज़ों को करें। जो हमारे students नहीं हैं, just mention in the chat box कि आपको कुछ समझ में आया। ओके, सीमा, आप जो है वो कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे। हमने जो है वो एज पर पॉलिसीज भी मुझे 2 दफ़ा मैसेज आ गया है कि जो स्टूडेंट्स नंबर पूछ रहे हैं उन्हें आप जो है वो नंबर बता देंगे। इसमें ना नंबर मेंशन होगा हमारा एंड पे भी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो यहाँ पे आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ओके, ओके जी, थैंक यू सो मच जी। आई एम श्योर मैम लुबना है और बाकी भी always take the students as a member of our family, and we try our level best to facilitate them in every possible manner. So ji, uh, it was a wonderful session. Take care of yourself and goodbye from my side. Allah Hafiz.